নমস্কার সকলকে। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো বিষয় হচ্ছে যে আজকে আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিতে এসেছি। আমি এর আগেও দিয়েছিলাম, কিন্তু একটা দ্বিতীয়বার রিমাইন্ডার দেওয়া, মনে করিয়ে দেওয়া, যাতে করে কোনো মিস না হয়ে যায়। এবং আমি আজকেও এই ভিডিওটা বেঙ্গলি, ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজে রাখার চেষ্টা করছি, কারণ এতে অনেকের হেল্প হবে, বুঝতে সুবিধা হবে। বিষয় হচ্ছে যে এই ধরনের ভিডিও সম্পর্কে জানতে, আপডেটস মিস না করতে, ইনফরমেশন সম্পর্কে জানতে, পড়াশোনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সবকিছু আপডেট পেতে কি করতে হবে? এসবি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে হবে, সঙ্গে বেল আইকনকে প্রেস করে রাখতে হবে যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। তো আমি বাংলা এখানে বলে দিচ্ছি, দেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি, দেন আমি হিন্দিতে বলছি। প্রথমত হচ্ছে যে গেটের ফর্ম ফিল শুরু হয়েছে, আমি বলে দিয়েছিলাম। তো আবারও মনে করিয়ে দিই, 26 সেপ্টেম্বর, টুডে ইজ 15 সেপ্টেম্বর, 26 সেপ্টেম্বর হলো লাস্ট ডেট। এবং কি হচ্ছে যে জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের জন্য লাগছে 1800 টাকা, 1800। এসসি এসটি পিডব্লিউডি অ্যান্ড ফিমেল ক্যান্ডিডেটের জন্য লাগছে 900 রুপিস, 900 টাকা। যদি কেউ এই সময়সীমার মধ্যে তাদের ফর্ম ফিল করতে না পারে, তাহলে লেট ফি সহ তাদেরকে দিতে হবে 900-র সঙ্গে 500 অ্যাড করে 1400 টাকা, এবং 1800-র সঙ্গে 500 অ্যাড করে 2300 টাকা। আমি প্রথমে বলেছিলাম, এখনও বলবো যে যাতে লেট ফি দিয়ে আমাদের ফর্ম ফিল করতে না হয়, সেটা করাটাই বেটার বা বেস্ট হবে। এবং এখানে আরেকটা ইনফরমেশন দিচ্ছি যে সোশিওলজি, সাইকোলজি, ফিলসফি, ইংলিশ, লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স, এই 6টা সাবজেক্টের জন্য গেট এক্সাম অ্যাভেলেবল। তাহলে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে। কেউ যদি গ্র্যাজুয়েশন, মানে হচ্ছে এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে থার্ড ইয়ার গ্র্যাজুয়েশনে আছে, তারাও দিতে পারে। যারা এমএ করছে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার সেমিস্টার যেগুলো থাকে, তারাও দিতে পারে। আবার এমএ পাস কমপ্লিট হয়ে গেলেও দিতে পারে, গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেলেও দিতে পারে। তো তাদের জন্য একটা আলাদা সুযোগ সুবিধা কিন্তু থাকছে। আর এই হোয়াট ইজ গেট এক্সাম ইন ডিটেলস আমার কিন্তু বাংলায় বলা আছে, এবং আমি যখন সিলেবাস ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি গেট এক্সামের প্রথম দিনের ভিডিওতে, কিন্তু লিখে চার্ট করে খাতাতে বলেছি, তাতে আরও কিন্তু অনেক কনসেপ্টস এবং অনেক কিছু মনের প্রশ্ন, ডাউটস ক্লিয়ার হবে। সেই ভিডিও কিন্তু তোমরা বা আপনারা অবশ্যই দেখে নিতে পারেন বা পারো। তো এখন আমি শিফট করছি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। সো লেটস গেট স্টার্টেড in English language. So today I'm going to alert you that is the last date of GATE online application form fill is 26 September, and again I want to tell you that the amount of application form for registration, that is 800 rupees, 1800 or 1800, sorry, I'm sorry, 1800 or 1800 rupees for general category, and SC, ST, OBC, SC, ST, PWD and female category. SC, ST, PWD and female category 900 rupees. And if you miss the last date of online application form, then you have a chance, that is with late fee, and this late fee is 500 rupees. So if you miss your chance, the last date of form fill of GATE exam 2025, then you have to pay total amount of 900 plus 500 is equals to 1400 or 1400 for SC, ST, PWD and female candidates. And in general category you have to pay with late fee, that is 1800 plus 500 is equals to 2300 or 2300. So I always try to suggest you that please don't give late fee amount. Please try to fill your form within the date which they mentioned, okay? And you have opportunities in GATE examination, that is you will be able to get any chance for PhD or your for upcoming further study in any IITs, Indian Institute of Technology. So in IITs or IIC Bangalore, there are if you want, you can search it on Google also, how many IITs are there in all over India. And maybe some people know, some people don't know that there are 6 subjects total. Those who will apply or who are able to apply for GATE 2025 application form, these subjects are sociology, philosophy, psychology, English, linguistics and economics. And I already made 2 videos on it. What is GATE exam in Bengali language? I described it
from few months from minimum 6 months ago, and if I'm not wrong. And another video is I made it through my notes. I used my own notes in notes book, and I mentioned categories, marks, divisions, so it will help you. So you have to go SB literature page, or you can search in YouTube search bar, and you can mention what is GATE exam from SB literature, or GATE syllabus decoding. I already decoded GATE syllabus for paper 1 and paper 2. There are 2 paper and 3 parts I already discussed. So these written in English language, this was written in English language, and if you want, you can watch these videos and it will help you, I hope. So I'm here to recall you, remind you, please go and register and apply for GATE 2025 examination, because it will give you another chance for your upcoming career or further studies. It is a benefit or advantage of those who want to appear in GATE examination 2025. Okay, so 2 videos in Bengali language, few things I already told in English also, so it will help you, I hope. Next one is that there are 2 paper, or there are 2 paper which I applied, that is for 1 paper there are options, 2 paper options are there, because my subject is English literature, and I already applied for on 1 paper, that is paper 2 English, and there are 2 options. If you want to give this exam for 2 paper, that is also available, and their amount or payment money may be different from with those who applied for only for 1 paper. Okay, and please avoid or skip late fee. Try to fill your form within the dates which mentioned, and okay. And if you have any query or questions related to GATE exam 2025, you can comment, you can ask these questions on the comment section below, and I will try to help you out, and I will try to give you the answers. Okay, so and now I'm going to shift in Hindi language, and today my perspective is that I want to alert you, I want to alert you all, I want to remind you all, so that you don't miss this opportunity or chance, because there are lots of people, those who don't know about this information, because GATE was started in 2020. First form fill started was 2020 August, when COVID-19 situation was there, and after that first exam was held in 2021, then 22, 3, 4, and this time 25. So maybe this is new also, 4 to 5 years ago it started. So let's come to in Hindi language. तो आज की ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य, मेरा जो मोटिव था, वो कि आप लोगों को एक बार याद दिलाना कि आप लोग ये चांस मिस ना करें, क्योंकि मुझे फील होती है कि गेट एग्ज़ाम के बारे में सभी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि NT-UGC नेट एंड सेट एग्ज़ाम इन एनी स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया लोगों को पता है, ज़्यादातर पता है, लेकिन ये गेट जो आई है 2020 साल में आए थे, पहली बार फॉर्म फिल हुए थे अगस्त के टाइम पे, अगस्त टू सितंबर के टाइम पे, फिर एग्ज़ाम हुए 2021 में फरवरी में, फिर 22 में, फिर 23 में, फिर 24, दिस टाइम 25 में। और ये गेट के रिलेटेड मेरे एक बंगाली में वीडियो है, व्हाट इज़ गेट एग्ज़ाम, जो कि 300 व्यूज़ पढ़ कर चुके हैं, और जहाँ पे मैंने डिटेल्स बोले हैं, ज़्यादातर मैंने बंगाली लैंग्वेज में बोले हैं बातें, लेकिन जो मेंशन नंबर्स, क्राइटेरिया, कैटेगरी, ये सभी तो हिंदी इंग्लिश में ही बोलने पड़ते हैं, तो वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लग सकता है। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई हेल्प कर सकते हैं मेरे चैनल पे वीडियो, तो वो है गेट सिलेबस डिकोडिंग डे 1। मतलब कि डे 1 नहीं, आपको सर्च करना पड़ेगा कि गेट सिलेबस डिकोडिंग। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी वीडियोज़ जिसकी भी बारे में एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन हो, अपडेट हो, या फिर कोई एग्ज़ाम के सिलेबस डिकोडिंग हो, या फिर कोई
स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना हो तो मैं एक सीरीज़ कंटिन्यू करती हूँ। ये मेरी खुद मुझे ये फील होती है और मैं इस तरह से वीडियोस लाती हूँ कि मैं एक टॉपिक पे एक बार बोल के वहाँ से हट नहीं सकती हूँ। ये होते हैं कि कुछ कोई पोइट्री, कोई ड्रामा, कोई नॉवेल के समरी और जो घटनाएं थी ओवरव्यू प्लॉट को एक ही वीडियो में बोल देती हूँ। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल थ्योरी हो या फिर कोई सिलेबस डिकोडिंग हो, मैं एक सीरीज कंटिन्यू करती हूँ। ये 1 से 7 दिन तक भी चलते हैं, कभी कभी 1 से 10 दिन तक भी चलते हैं। शायद व्यूज़ कम आए, लेकिन मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये फॉलो करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को अभी शायद कम लोगों को पता चल रहा है। बाद में जब पता चलेगा वो सीरीज़ वहाँ से वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और कवर भी कर सकते हैं, तब उन लोगों का बहुत हेल्प होगा, मुझे ये लगता है। और आई नो कि ये हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं कि गेट एग्जाम के मैंने अपने ही नोट खाता जो है, नोटबुक खाता, उसको लेकर वीडियो बनाए थे। वहाँ पे सिलेबस डिकोडिंग के साथ कौन सी कितने मार्क्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या पार्ट रहता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है, नेगेटिव मार्क्स कितने का है, ये सब मैंने बताया। जहाँ पे कहा पेपर के 3 सेक्शंस रहते हैं। जनरल पेपर क्या है, फिर बीच में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बीच क्या है, फिर पेपर 2 इंग्लिश में क्या है। और ये गेट एग्जाम हम लोग चाहे तो 2 पेपर में भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने पहले जब ये एग्जाम दी थी तो एक ही पेपर चूज़ की। इस बार भी मुझे ये एग्जाम मुझे भी देनी है कि मैंने एक ही पेपर को चूज़ करती हूँ। जनरल पेपर तो सभी के लिए रहता है, चाहे वो आर्ट्स डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो जो होते हैं मेनली वी नो दैट गेट इज़ फॉर इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में भी जो होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो पेपर के जो ऑप्शंस होते हैं उन लोगों को उनका बारे में पता है। तो हमारा जो डोमेन है वो इंग्लिश लिटरेचर है, और पेपर 1 हम आर्ट्स के लिए एक है, जहाँ पे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स, फिलोसफी के स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 6 सब्जेक्ट के कैंडिडेट स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। कौन सी स्टैंडर्ड में है ये एलिजिबल है, मैं ये भी यहाँ पे बोल देती हूँ कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, कोई किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपीयर हो सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं इन 6 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट मतलब कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के ये 6 सब्जेक्ट जो मैंने अभी मेंशन की, तो अगर आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप एलिजिबल हो। अगर आप मास्टर्स में हो, फर्स्ट सेम में हो, थर्ड सेम में, या फिर कोई भी सेमेस्टर में हो, मास्टर्स के रनिंग स्टूडेंट हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मास्टर से पास आउट हो चुके हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपको अपकमिंग आपके पीएचडी के लिए या एवं आपको पीएचडी के साथ साथ जो ग्रेजुएटेड है उनको फर्दर उनके जो स्टडीज़ मास्टर्स करने के लिए, और जो मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनके पीएचडी के लिए आईआईटीज़ वगैरह आप लोगों को बुलाते हैं। अब ये सर्टिफिकेट के निधार पर आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। अगर अच्छे रैंक लाए, अच्छे इंटरव्यू दिए, तो आपको वहाँ पे चांस मिल सकता है फ्यूचर में पीएचडी करने का या फिर मास्टर्स करने का। और वहाँ से पढ़ने के बाद भी और इंडिया में भी और बाहर में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं काम करने के। ठीक है, तो हम मैंने बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे शेयर कर ही दी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं बाद में ज़रूर बताऊंगी। और आप लोगों को जानना है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, प्रश्न कीजिएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और गेट एग्जाम के बारे में क्या जानना है, क्वेश्चन कीजिएगा। एक साथ सभी लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सकते करें। और मुझे लगा कि इतने सारे क्वेश्चन है तो मैं एक वीडियो ही लेकर आऊँगी आप लोगों के आंसर्स के रिलेटेड। जब मैंने नेट के कट ऑफ से रिलेटेड लेकर आई थी तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे ये लगा कि अगर मैं ये बोलती हूँ तीनों लैंग्वेज में तो लोगों को ज़्यादा हेल्प हो सकता है, क्योंकि मुझे फील होती है और मुझे सही पता है कि लोगों को अभी कम पता है इस एग्ज़ाम के बारे में, इसके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो कंपटीशन, अगर लोगों को लगता है कि यहाँ पे इतने बातें शेयर करके कंपटीशन बढ़ सकता है, मतलब कंपटीशन तो सभी फील्ड में है, सभी जगह पे है, लेकिन जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, जिसको पाना है वो खुद कर लेंगे, और जिसको लाख के फेवर में लाना है वो भी कर लेंगे, पा लेंगे जो पाना है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को कोशिश करती रहनी चाहिए इस फील्ड में, अगर हम जाना चाहते हैं तो कोशिश के बाद अगर होते हैं अच्छा, नहीं भी होती है तब तो भगवान है। तो कौन सी राह पे कब हमें क्या करना है, किस राह पे चलना है, कभी कभी सिचुएशन बता देते हैं, कभी कभी गॉड बता देते हैं, कभी कभी हमारी हालात, हमारी इंटेंशन, हमारी इमोशन,
हमारी दिमाग, हमारी इंट्यूशन बोलते हैं क्या करनी है। तो बाय द वे ये सब इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और 26 सितंबर है लास्ट डेट इस एग्ज़ाम के। आप फीमेल कैंडिडेट है, आप SC ST PWD है तो आपको 900 रुपीज़ 900 रुपये देना है। उसके साथ जनरल कैंडिडेट को 1800 रुपये 1800 रुपये पे करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन। एंड अगर आप लोगों ने अगर डेट समय रहते रहते अगर अपने आप फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विथ 500 रुपीज़, मतलब कि लेट फी 500 रुपीज़। अगर आप SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट है तो 900 प्लस 500 आपको 1400 रुपये पे करना होगा। अगर आप जनरल है 1800 प्लस 500, क्योंकि 2300 रुपये 2300 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ अवॉइड लेट फी। समय रहते ही फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आप लोगों को इस एग्ज़ाम को देना है। अगर आप पहली बार है तो आप ये एग्ज़ाम दे के अपनी बेस समझ सकते हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी आए, क्या आपको फील हो रहा है। अगर इस बार आप ट्रायल के लिए दे सकते हैं, और अगर कोई अच्छे प्रिपरेशन है तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे लोगों के होते हैं, ऐसे नहीं कि होते नहीं है, ऑब्वियसली होते हैं। अगर आप लोग इस बार दे के एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फिर बाद में धमाकेदार प्रिपरेशन लेके फिर देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आप लोगों की हेल्प हो और आप लोगों को पता चले, तो इसीलिए मैंने 3 लैंग्वेजेस में बोले। तो नमस्ते, अच्छे रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए SB लिटरेचर को, और हमारे साथ जुड़ते रहिए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। इस पढ़ाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SB लिटरेचर एंड be happy and keep patience, everything will be fine। आप लोग जो नेट एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट्स फाइनल आंसर की आ ही जाएंगे। फाइनल आंसर की नेट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल देती हूँ। फाइनल आंसर की आ ही जाएंगे कुछ ही दिनों में, हम बोल सकते हैं फाइनल आंसर की आने के एक दिन बाद, जिस दिन फाइनल आंसर किया थे उस दिन भी, उसके एक दिन बाद भी, इसके 2 दिन बाद भी, कभी भी किसी भी मोमेंट पे रिजल्ट आ सकते हैं फाइनल आंसर की के बाद। आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी। तो पेशेंस रखिए, रिजल्ट आ रहे हैं, जिसका होगा उसको एडवांस शुक्रिया अदा करती हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका 0.001 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के वजह से नहीं होंगे, उन लोगों का भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, खुद पे विश्वास रखो। पढ़ाई करते हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत मेहनती हो, आप लोग बहुत परिश्रम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो खुद पे बिलीव रखो, हो जाएगा। ओके, कीप पेशेंस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। गॉड ब्लेस यू एंड नमस्कार। भारत को देखते हो SB লিটারেচার। SB লিটারেচার মিন্স বেস অফ ইংলিশ লিটারেচার, নট অনলি বেস অফ ইংলিশ লিটারেচার। আমরা জায়গায় আলোচনা করি সবসময় তার বেসটা বোঝার চেষ্টা করে থাকি। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, আর হচ্ছে দেখতে থাকুন SB লিটারেচার। Thank you very much for watching SB literature. God bless you all. Thank you all. Love you all and keep patience. Everything will be fine. Everything will be in your favor. Whatever it is, maybe it is about NTUGC NET, it is about GATE or SET or any other competitive examinations. Everything will be fine. Keep patience, have faith, and have faith. Everything will be fine. And keep working and do like, comment, share and subscribe to SB literature and share. Hit the bell icon for upcoming updates and information so that you never miss an update. Thank you. Bye bye. Take care. Good night. Shubh Ratri.